إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم لما سبق لفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وعلى لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وتشعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات پڑھے محمد. سامعین مکرم و معظم، برادران ایمانی و بزرگان ملت، آج عشر مجالس کی یہ تیسری تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. مسلسل جو ہمارا اس عشر اولا کا موضوع ہے وہ ہے حدیث قصہ اہل بیت کا قصیدہ. تو اس کے ذیل میں اپنی طالبانہ علمی حیثیت کے اعتبار سے جو کچھ پڑھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہماری گفتگو کل تک کے جو تھی وہ اس پر مبنی تھی کہ نبی در زہرا پر آئے، آنے کے بعد سلام کیا. سلام کرنے کے بعد نبی نے کہا انی لاجد فی بدنی ذوفن، کہ ہم اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہے ہیں. اور جناب فاطمہ الزہرا نے اس کے بعد نبی نے کہا کہ اے فاطمہ ایتینی بالکسائل یمانی، کہ تم مجھے اپنی چادر لا کر اس میں ڈھانپ لو. اب یہاں پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ بی بی نے کہا کہ مجھے اپنی چادر سے اڑا دو یا اپنی چادر اڑا دو، لیکن یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پر عربی جو زبان ہوتی ہے ہمارے یہاں اس کی نازکیں ہیں، باریکیں ہیں اس کی. اگر یہاں پر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ اڑا دو تو یہاں پر فقط تینی کی بجائے آئے گا واللفینی، کہ مجھے اڑا دو. لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یمانی کسائل بے فقط تینی، کہ مجھے چادر سے ڈھانپ لو، چادر سے ڈھانپ لو. اب آپ ایک قرآن کا سورہ ہے سورہ لیل، اس کو پڑھیے تو اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ واللیل اذا سجا، کہ ہم اس رات کی قسم کھاتے ہیں کہ جس نے سورج کو ڈھانپ لیا. تو اب اس حدیث کی تفسیر کر رہی ہے سورہ لیل کہ یہ وہی شمس ہے جو چادر زہرا سے ڈھانپا گیا تھا، بلکہ ڈھانپا اسے جا رہا ہے جو لامحدود ہے، کیونکہ ڈھانپنے کے لیے ایک حد ہونا چاہیے کہ ڈھانپنا کسے ہے. تو جو لامحدود ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی چادر سے ڈھانپ لو. تو جو لا حد کی حد ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور وہ محمد کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی چادر سے ڈھانپ لو. ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد. مجھے اپنی چادر سے ڈھانپ لو. اب تاریخ بتاتی ہے کہ رسول خدا نے چادر اوڑھی. اوڑھنے کے بعد امام حسن آئے، آنے کے بعد اماں کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو بی بی نے کہا کہ ہاں، تو آپ کے نانا چادر کے اندر موجود ہے. امام حسن گئے چادر کے قریب، اجازت مانگی. اجازت مانگنے کے بعد چادر میں داخل ہوئے. پھر امام حسین آئے. آنے کے بعد اسی طریقے سے جس طریقے سے امام حسن نے سلام کیا، امام حسین نے بھی سلام کرا. سلام کرنے کے بعد وہی فکر امام حسین نے بھی کہا کہ وہ مادر گرامی ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ ہاں آپ کے نانا جو ہے وہ چادر کے اندر موجود ہے.
अब इमाम हुसैन चादर के करीब आए, आने के बाद कहा कि नाना जान क्या इजाजत है कि इस चादर में दाखिल हो जाऊं? तो नबी ने कहा हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे बेटे, बिस्मिल्लाह, आप चादर में दाखिल हो जाइए। तो यहां पर एक गौर फिक्र करने की बात यह है कि ये वही हुसैन है और ये वही नबी है। फर्क है चादर का। जब इमाम हुसैन यहां आए तो आने के बाद कहने लगे कि या नबी अल्लाह, ऐ नाना जान, क्या आपकी इजाजत है कि इस चादर में दाखिल हो जाऊं? लेकिन यही नबी है और यही हुसैन है जो मस्जिद नबवी में नबी की पुष्ट पर सवार हुए, लेकिन वहां इजाजत नहीं मांगी। मैं कहूंगा मौला ये कौन सी बात है भाई, वहां इजाजत नहीं मांगी, वो तो अल्लाह की नमाज थी, ये तो फातिमा की चादर है। तो इमाम की यही आवाज आएगी कि नादान, यही तो पैगाम दे रहा हूं कि मिल्लत याद रखे कि ज़हरा की चादर और होती है, अल्लाह का घर और होता है। एक दुरूद पढ़ो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़हरा की चादर और है, अल्लाह का घर और है। अब उसके बाद इमाम हुसैन भी दाखिल हुए। मौला अली अमीरुल मोमिनीन आए, सलाम किया ज़ौजा को, कहा कि हम अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहे हैं। तो हाँ आपके भाई चादर में मौजूद है। मौला अली करीब है, चादर के पास आने के बाद कहा कि क्या इजाजत है मैं चादर में दाखिल होता हूं? तो नबी ने कहा हाँ या अली आप दाखिल हो जाइए। अब जब 4 तन आ गए तब जनाब फातिमा ज़हरा आई, आने के बाद कहा कि बाबा जान क्या इजाजत है मैं भी इस चादर के नीचे दाखिल हो जाऊं? कहा मेरी रखते जिगर बिस्मिल्लाह, इजाजत है आप भी दाखिल हो जाइए। तब तारीख ने लिखा और अभी से किस्सा बताती है कि जब 5 तन जमा हो गए चादर में और जमा होने के बाद नबी की एक ज़ौजा चली, चलने के बाद उन्होंने चादर का कोना पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा कि या नबी अल्लाह क्या इजाजत है कि मैं भी दाखिल हो जाऊं? अब उस ज़ौजा का नाम है उम्मे सलमा। अब जनाब उम्मे सलमा आई, उसके बाद चादर का कोना पकड़ा, कहा या नबी अल्लाह क्या इजाजत है कि मैं चादर में दाखिल हो जाऊं? तो नबी ने एक अजीब जुमला कहा, कहने लगे ऐ उम्मे सलमा तुम खैर पर हो मगर चादर में दाखिल नहीं हो सकती। तुम खैर पर हो लेकिन चादर में दाखिल नहीं हो सकती। तो क्या इजाजत है कि एक जुमला दिया जाए और आगाज तकरीर का किया जाए कि भैया जब खैर वाली चादर में नहीं आ सकती तो नाखैर वाली चादर में कैसे आ गई? एक दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं बल्कि आपकी बात को दोबारा करके कहूं कि भैया जब मकान वाली चादर में नहीं आ सकती तो मैदान वाली चादर में कैसे आ जाएगी? शामिल अहले बैत कैसे हो जाएगी? नबी ने कहा उम्मे सलमा आप खैर पर हैं लेकिन आप अहले बैत में से नहीं हो सकती है, आप खैर पर हैं। अब उसके बाद हदीस किस्सा बताती है कि जैसे ही ये सब अहले बैत जमा हुए चादर में तो एक नूर निकला जो अर्श की जानिब पहुंचा। नूर का पहुंचना था कि जिब्राइल की आंखें चौंधियाई और आंखों का चौंधियाना था कि जिब्राइल ने कहा या रब वमन तहतल किसा, पालने वाले कौन है इस चादर के नीचे? मैं कहूंगा जिब्राइल क्या हो गया है, क्या तुम्हें नहीं मालूम इस चादर के नीचे कौन है? अरे क्या तुम भूल गए? इसी दर पर तो आयतें लेके आते थे, ये वही नबी है जिनके पास वही करने आते थे, ये वही अली है जिनसे मुलाकात करने आते थे, ये वही ज़हरा है जिनकी हाथ की पकी हुई रोटियां जन्नत में ले जाते थे, ये वही हसनैन है जिनका झूला झुलाने आते थे, ये वही हसनैन है जिनको लोरी सुनाने आते थे। तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि चादर में कौन है? तो वो कहेंगे नादान मैं खुद भी पूछ रहा हूं और अल्लाह की जबान से अहले बैत के कसीदा भी बता रहा हूं कि देखो अल्लाह अहले बैत का कसीदा कैसे पढ़ता है। तो जैसे ही जिब्राइल ने सवाल किया पालने वाले अमन तहतल किसा, कौन है चादर के अंदर, कौन है चादर के नीचे? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुम फातिमा तो अबू हा व बाल हा व बनू हा, इसमें फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं, फातिमा के बेटे हैं। अब हदीस किसा में कसीदा अहले बैत का कैसे पढ़ा? जिसमें फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। अब यहां पर एक इल्मी जुमला आपकी समाअत के हवाले करता हूं कि यहां पर जो इस्तेमाल हुए लफ्ज तुम फातिमा तो अबूहा व बालहा व बनूहा, अब ये जो लफ्ज बनुआ है ये जमा का सीगा है। अरबी की जबान में 3 सीगे होते हैं, एक वाहिद होता है, एक तस्निया होता है, एक जमा होता है। तो ये 3 सीगे होते हैं, वाहिद तस्निया जमा। वाहिद इस्तेमाल होता है एक के लिए, अगर किसी एक पर्सन से गुफ्तगू करी जाएगी तो अरबी के एतबार से उससे वाहिद के सीगों से मुखातिब हुआ जाएगा। अगर 2 होंगे
तो उनके साथ तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप हदीस किस्सा में देखिए और बताइए कि चादर के नीचे कितने बेटे मौजूद हैं? 2 बेटे हैं या 2 से ज्यादा बेटे हैं? क्योंकि अगर यहां पर 2 बेटे हैं तो फिर ये अल्लाह जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? भाई अरबी में तस्निया का सीगा अलग है जो 2 के लिए बोला जाता है। बनुहा का वाहिद इब्न, तस्निया है इब्नैन, जमा है बनून, यानी जिससे बनुहा बना है। तो जब अरबी ग्रामर में 2 के लिए सीगे हैं तो अल्लाह यहां पर जमा का सीगा इस्तेमाल क्यों कर रहा है? तस्निया का सीगा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? तो उसकी वजह यह है, लिखने वाले उलमा ने लिखा कि इसमें जब गौर से तकब्बुर किया जाए और गौर फिक्र करी जाए तब आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह कह रहा है इसमें फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं, फातिमा के बेटे हैं। तो अब जो भी फातिमा का बेटा होगा वो शामिल हदीस किस्सा होगा। इमाम हसन चलेंगे हुज्जत आखिर तक और हुज्जत आखिर चलेगी हजरत अब्बास तक, जिसके लिए जनाब फातिमा ज़हरा कह दे अना वलदी अल अब्बास कि अब्बास मेरा बेटा है, वो भी शामिल हदीस किस्सा है। तभी अल्लाह कह रहा है कि हम फातिमा तो अबू हवा बालहा व बनूहा, इसमें फातिमा के बेटे हैं, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, और जो भी बेटा फातिमा का है वो शामिल हदीस किस्सा है। उसके बाद नबी ने दस्त दुआ बुलंद करे तो अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, यही अहले बैत नहीं है, ये अहले बैत है। अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, कि परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, ये अहले बैत है। फिर उसके बाद नबी ने एक अजीब दुआ करी, परवरदिगार तो उसको दोस्त रखना जो इनको दोस्त रखे, तो उससे गजबनाक होना जो इनको गजबनाक करे, तो उससे दुश्मनी रखना जो इनसे दुश्मनी रखे। तो इसका मतलब हदीस किस्सा ने एक पैमाना हमें दिया कि याद रखो जो भी इनका दुश्मन होगा वो इनका नहीं खुदा का दुश्मन होगा। जो इनसे दोस्ती रखता है वो खुदा से दोस्ती रखता है, और तभी इनके डर को छोड़ने वाला आज तक के रजी अल्लाह हुआ है, रहमतुल्लाह नहीं हुआ है। नहीं तवज्जो करी आपने। अच्छा, मेयार कि अल्लाह राजी हो कैसे, ये पता कैसे चले? हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें क्या पता अल्लाह राजी है या नहीं है? रोजा रख रहे हैं, दिन दिन भर भूखे हैं, प्यासे हैं, तो हमें क्या पता कि जिसके लिए हम रख रहे हैं वो हमसे राजी है या नहीं है? हज कर रहे हैं, लाखों पैसे खर्चा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ रहे हैं, 3 शैतानों को पत्थर मार रहे हैं, 3 शैतानों को पत्थर मार रहे हैं, तो ये पता कैसे चले कि अल्लाह राजी है या नहीं? तो नबी ने कहा कि हम यहीं पर तुमको एक ईमान की कसौटी देके जाएंगे, एक पैमाना देके जाएंगे, जिससे ये अंदाजा लगेगा कि अल्लाह राजी है या नहीं है। तो जो भी जिससे भी ये राजी है उससे अल्लाह राजी, जिससे ये नाराज उससे अल्लाह नाराज। तो आपको पता चला तारीख में जो लोग दुआ कर रहे हैं कि साहब अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, हम तो 1400 साल से लेके आज तक के यही सुन रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन क्या पता उन्होंने किसको गजबनाक किया है कि अल्लाह अभी तक राजी नहीं हुआ है, अल्लाह अभी तक राजी नहीं हुआ है। तभी तो वो 14 साल से लेकर अब तक कह रहे हैं अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। तो वो रजी अल्लाह तो हो सकते हैं इनको छोड़ के, रहमतुल्लाह नहीं हो सकते हैं। और यहां पर भी एक पैमाना है कि जो इनके दरवाजे पर सजदा रेज हो जाए वो रहमतुल्लाह होता है, और जो इनके दामन को छोड़ दे वो लानतुल्लाह होता है। एक दुरूद पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये हमें पैमाना, ये कसौटी मिली नबी से, क्योंकि अब नबी ने बताया कि अल्लाह की रजा में, इनकी रजा में अल्लाह की रजा है। अगर ये राजी है तो अल्लाह राजी है। अब आप देखिए हदीस किस्सा आपने हमेशा आयतें पढ़ी होंगी, उलमा इकराम से सुना होगा
कि आयत की जो तफसीर होती है वो हदीस बयान करती है। आयत की जो तफसीर है, दुरूद पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयत की जो तफसीर होती है वो हदीस बयान करती है, लेकिन वाहिद फजीलत है हदीस किसा की कि जिसकी तफसीर आयत बयान कर रही है। आप आयत मुबाहिला उठाइए और पढ़िए कि उसके अंदर क्या है। जब नसारा नजरान कहा जाता है, ईरान की तरफ कबीला है, उसे नजरान कहा जाता है। वहां के रहने वाले ईसाई थे, हजरत ईसा के मानने वाले थे, तो उनको उम्मत ईसाई कहा जाता है, ईसाई कहा जाता है। और वो नजरान के रहने वाले थे। वो नबी के पास आए थे मुबाहिसा करने कि हम ये मुबाहिसा करेंगे कि वो जो कहते हैं कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, तो हम उनसे कहेंगे कि ये जनाब ईसा अल्लाह की औलाद है, क्योंकि इनके वालिद तो थे नहीं, बाप तो थे नहीं, तो इनके ये अल्लाह के बेटे हैं। तो अब ये नबी के पास आए। अब नबी ने दलाइल अकलिया पेश कर रहे हैं, दलाइल नकलिया पेश कर रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, कबूल नहीं कर रहे हैं। नबी कुरान की आयतें सुना रहे हैं, सूरह सुना रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं, लेकिन ये अपनी बात पर बाजिद हैं कि नहीं, ये अल्लाह के बेटे हैं। तो जब ये बाजिद हो गए तब अल्लाह ने हुक्म दिया, फकुल तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरे हबीब, अगर ये आपके समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं तो इनसे कहिए कि मुबाहिला करो, और मुबाहिले में आके तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपने नस्लों को लाओ, हम अपने नस्लों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे, और झूठों पर लानत करेंगे। नहीं, बल्कि इसके आप गौर करिए कि नबी के पास जब आयत मुबाहिला आई कि इनसे कहिए अब ना आना कि ये अपने बेटे लाए, आप अपने बेटे लाइए। सबसे बड़े थे नबी, अल्लाह खिताब करता नबी से, लेकिन अल्लाह ने आगाज कहां से किया? अपना आना बेटों से खिताब किया। परवरदिगार, ये क्या बात है? अगर आगाज करना था तो या तो ये कहते कि तुम अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। लेकिन यहां पर अल्लाह अब ना आना से क्यों खिताब कर रहा है? क्या खिताब करके बता रहा है कि याद रखो, जब भी इस्लाम पर कोई वक्त आएगा तो नबी के बेटे काम आएंगे, नबी के बेटे काम आएंगे। अब जैसे ही ये आयत आई, नबी ने अपना आना के जहां पर इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिया, निसा आना के मकाम पर शहजादी आई, नस्सों के मकाम पर अली मुर्तजा तशरीफ लाए। अब जैसे ही नसारे नजरान ने इनको आते हुए देखा तो एक ज़ईफ ईसाइयों का आलिम बोला कि देखो, हम ऐसी सूरतें देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को हुक्म कर दे तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा, पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा, पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा। तो भैया, मुसलमानों से तो लाख अच्छे ईसाई थे, कम से कम उन्हें यह तो मालूम था कि ये कह देंगे तो हो जाएगा, कह देंगे तो हो जाएगा। हम ऐसी सूरतें देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को हुक्म देंगे तो वो अपना मकाम छोड़ देगा, अपनी जगह छोड़ देगा। तो जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा तो आती हुई लानत रुक गई। लेकिन मुबाहिले ने हमें एक पैगाम दिया कि याद रखो, जो भी कहीं भी इनके मुकाबले पर आएगा वो लानत का हकदार हो जाएगा, वो लानत का हकदार हो जाएगा। अब भाई, ईसाई तो इनके मुकाबले पर आए नहीं, वो ये जुमला कह के बच गए कि हम ऐसी सूरतें देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को हुक्म देंगे तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा, पहाड़ को हुक्म देंगे, पहाड़ अपना मकाम छोड़ देगा। तो भैया, यहां तो लानत आई, लेकिन ये लानत इज्जत से बच गए। लेकिन तारीख ने बताया कि कुछ ऐसे मुसलमान इनके मुकाबले पर आ गए
जब इनके मुकाबले पर आए तो अल्लाह ने कहा कि अब से आयत वहां आई थी लेकिन अमल इनके ऊपर होगा। आयत वहां आई थी, लानतुल्लाह ये होंगे, क्योंकि वहां तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी सूरतें देख रहे हैं, मुबाहिला ही नहीं करेंगे। अच्छा, मुबाहिले ने एक पैगाम यह भी दिया कि याद रखो, जब भी दीन पर वक्त आए, इस्लाम पर वक्त आए, शरीयत पर वक्त आए, तो अपने इल्म को ना पेश करना, अहले बैत को पेश करना। अपनी अक्सरियत के मुकाबले पर ना जाना, अहले बैत की अजमत को पेश करना। तो इसका मतलब अगर इस्लाम पर कोई वक्त पढ़ेगा तो अहले बैत को पेश किया जाएगा, अहले बैत को पेश किया जाएगा। तो मुबाहिला से यह एक सुन्नत चली कि जब भी इस्लाम पर कोई वक्त आएगा तो पहले अहले बैत को पेश किया जाएगा, तुम अपने इल्म के बल पे ना जाना। अच्छा देखिए, अहले बैत को भी पेश नहीं किया जाएगा, अहले बैत को ही पेश किया जाएगा, अहले बैत को ही पेश किया जाएगा। अब अहले बैत को पेश करने से आप ये बताइए कि अहले बैत का फायदा है या इस्लाम का फायदा है? नहीं तवज्जो करी भाई, अहले बैत को पेश करने से अहले बैत का फायदा है या इस्लाम का फायदा है? तो यह भी आपको नतीजा मुबाहिला के मैदान में मिलेगा कि अगर नसारे नजरान ये कहते हुए मिल जाए कि अगर हम ऐसी सूरतें देख रहे हैं कि अगर इनके सामने मुबाहिला किया और ये वो सूरतें हैं कि अगर ये हुक्म दे देंगे तो पहाड़ अपना मकान छोड़ देगा, अगर ईसाई इनका कसीदा पढ़ते हुए नजर आए तो इसका मतलब दीन को इनकी जरूरत, अगर ये दीन का कसीदा पढ़ते हुए आए तो इनको दीन की जरूरत, इनको दीन की जरूरत। तो अहले बैत को पेश करने से अहले बैत की अजमत में इजाफा नहीं होता है, बल्कि इस्लाम का तहफ्फुज होता है, इस्लाम की इज्जत बचती है, इस्लाम अपने मियाद पर बरकरार रहता है। तो यह अहले बैत की जो तफसीर है, हदीस किसा तफसीर कर रही है, हदीस किसा की आयत मुबाहिला। अब इंशाअल्लाह कल से गुफ्तगू होगी इस पर कि ठीक 8 बजे यहां अव्वलन तो मजलिस का आगाज हो जाता है कि अहले बैत को पेश करने से अहले बैत का फायदा या इस्लाम का फायदा है। अब इस बहस कल छिड़ेगी, क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है। अगर ये बहस छोड़ दी जाए तो कम से कम इसमें 20 मिनट और चाहिए है और मजलिस फिर 1 घंटे की हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि आप 8:45 बजे ही तशरीफ लाएंगे। एक दुरूद पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कल इस बात को अर्ज किया जाएगा कि अहले बैत को पेश करने से अहले बैत का फायदा है या इस्लाम का फायदा है। तो नबी ने बताया कि जब भी इस्लाम पर कोई वक्त आए तो तुम इनको पेश करना, शरीयत पर कोई मुसीबत आए तो अहले बैत को पेश करना। देखिए, गौर तलब बात यह है कि नबी उन्हें कुरान सुनाते रहे, वो हक़ मोहम्मद के कायल नहीं हुए, आयतें सुनाते रहे, हक़ मोहम्मद के कायल नहीं हुए, सूरह सुनाते रहे, हक़ मोहम्मद के कायल नहीं हुए। लेकिन जैसे ही अहले बैत को देखा तो फौरन उसने कहा कि अगर नबी हक पर ना होते तो ये अहले बैत को ना लेकर आते। तो इसका मतलब कुरान ने ये बात उनको साबित नहीं करा सका कि नबी हक पर है, सूरह ये बात साबित नहीं करवा सके कि नबी हक पर है, ये आयतें बात साबित नहीं करवा सकी कि ये हक पर है। लेकिन जैसे ही अहले बैत है तो उन्होंने कहा कि अगर नबी हक पर ना होते तो अहले बैत को ना लेकर आते। तो अब आपको पता चला अहले बैत भी है और हक के नबी का दफा भी करने वाले हैं। एक दुरूद पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर नबी हक पर ना होते तो अहले बैत को पेश ना करते। अहले बैत को पेश करना बता रहा है कि नबी हक पर है। तो जिसकी वजह से हक नबूवत कायम रहे उन्हें अहले बैत कहा जाता है। वो अहले बैत के जमाने ने पहचाना कहा कि अहले बैत है कौन। ईसाई जैसों ने पहचाना कि अगर ये हुक्म कर देंगे तो पहाड़ अपना मकाम छोड़ देगा। लेकिन अफसोस कि मुसलमानों ने नहीं पहचाना अहले बैत किसे कहते हैं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन यूं ही ये जुमला तो इरशाद नहीं फरमा रहे हैं कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। इमाम का यह जुमला नफ्सियाती जुमला है। आप गौर करें तो हमारे क्या गैर मज़ाहिब का भी अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो आप रुक कर किसी ना किसी से तो ये जरूर पूछते हैं कि भाई हुआ क्या था। लेकिन हाँ, गरीब इमाम हुसैन, मजलूमियत इमाम हुसैन के इमाम कह रहे हैं कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अरे मुझसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ।
अलज़मतुल्लाह आज 3 मुहर्रम आ गई और आपको मालूम है कि करबला के मैदान में 3 मुहर्रम को क्या कयामत हुई थी। मकातिब ने लिखा कि 3 मुहर्रम को करबला के मैदान में दस्ते दाखिल हो रहे थे। कभी उमर साद का दस्ता आता था, कभी पिसर साद का दस्ता आता था, और ये खाली दस्ता आता नहीं था बल्कि ये नेज़ों को जमीन पर मारते हुए आते थे, तबले बजाते हुए आते थे। आपको मालूम है जब ये लश्कर दाखिल होता था करबला के मैदान में तो अहले हरम सहम जाते थे, बच्चे माओ की गोदियों का इख्तियार कर लेते थे, माओ से लिपट जाते थे, शैतानियां गिरिया करने लगती थी कि ये क्या मुसीबत हो रही है। इमाम हुसैन सब्र के कलिमात पेश करते थे। इसी असना में इमाम हुसैन खेमे के बाहर आए, कहने के अब्बास जाके बीवियों को सब्र के कलिमात अता करो, जाके इनको दिल को तशफ़ी अता करो। हाँ तो तारीख बताती है कि जनाब ज़ैनब ये मंजर देख रही थी कि लश्कर पे लश्कर सुबह से लेकर शाम तक की आ रहा है, कभी किसी का दस्ता आता है, कभी किसी का दस्ता आता है, कभी किसी का दस्ता आता है। लेकिन तारीख लगती है कि इमाम जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन से जुमला कहा कि भैया उनकी तरफ से तो इतने लोग आ रहे हैं, अरे क्या कोई तुम्हारा जाने वाला नहीं है। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा तो इमाम हुसैन के ख्याल आया कि हाँ मेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर। इमाम ने अश्क भरी आंखों से खत लिखा और खत के ये जुमले हैं कि इमाम ने लिखा मिनल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब एलर रजलुल फक़ीह हबीब इब्ने मज़ाहिर। ऐ हबीब ये तुम्हारा बचपन का दोस्त तुम्हें खत लिख रहा है। ऐ हबीब देखो तुम्हारा दोस्त करबला के मैदान में घिर चुका है। और हबीब जितनी जल्दी हो सके अपने दोस्त की मदद को आ जाओ। आपको मालूम है जनाब हबीब कूफे के बाजार में थे और यही जनाब हबीब रवायत करते हैं कि जब दस्ते करबला में दाखिल हो रहे थे तो कूफे में लोहे का बाजार गर्म था। जिसको देखो कोई तलवार खरीद रहा था, कोई नेज़े खरीद रहा था, कोई भाले खरीद रहा था। क्यों खरीद रहा था? कि हुसैन इब्ने अली को शहीद करना है। हबीब कहते हैं कि इतने में कासिद आया, उसने मुझे खत दिया। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे इमाम का खत है, मैंने इसको चूमा, आंखों से बोसा लिया, सर पे रखा। रखने के बाद हबीब ने कहा जो मैंने खत खोला तो मैंने देखा कि मेरे इमाम ने लिखा था कि हबीब तुम जितनी जल्दी हो सके हमारी नुसरत को आ जाओ। हबीब कहते हैं कि मैंने खिजाब खरीद रहा था, मैंने खिजाब को वहीं पर फेंका और एक हबीब ने जुमला कहा। अब मकातिब में वो कयामत का जुमला लिखता है कि हबीब ने कहा ऐ मेरे दोस्त तुम्हारा दोस्त तुम्हारी नुसरत को आ रहा है। अरे अब ये दाढ़ी खिजाब से नहीं बल्कि हबीब के खून से रंगी जाएगी। अलज़मतुल्लाह खुदा कोई गम ना दे सैयद शुहदा के अलावा, ये दाढ़ी तुम्हारी नुसरत में मेरे खून से रंगी जाएगी। हाँ अबदारो तारीख बताती है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला के मैदान में आए। आने के बाद जैसे ही जनाब ज़ैनब तक की खबर पहुंची कि इमाम के बचपन के दोस्त हबीब आ गए हैं तो फौरन कहा अम्मा फिजा अरे जाके हबीब को मेरा सलाम कहिएगा। जैसे ही हबीब के पास सलाम जनाब ज़ैनब आया तो हबीब ने फौरन खाक पर बैठे और बैठने के बाद खाक को उठा के अपने सर पे डाला और डालने के बाद सर को पीटा और ये जुमला कहते हुए पीटा कि हाय अफसोस, अरे आका ज़ादियों पे यह वक्त आ गया है कि गुलाम ज़ादों को सलाम कर रही है। अलज़मतुल्लाह आका ज़ादियों पे यह वक्त आ गया है कि गुलाम ज़ादों को सलाम कर रही है। हाँ हजारों तारीख बताती है कि वो वक्त भी आया कि जब हसीन इब्ने नुमार वलद हराम इमाम हुसैन ने जब नमाज ज़ोहर पर कहा कि इनसे कह दो कि जंग रोक दी जाए, हम नमाज अदा कर लें, तो बुग़्ज़ हुसैन ऐसा था कि इस मलून ने कहा हुसैन कौन सी नमाज की बात करते हो, तुम क्या चाहते हो कि यजीद के मुकाबले पर आके तुम्हारी ये नमाज कबूल हो जाएगी। अब जैसे ही जनाब हबीब ने ये जुमले सुने इस मलून के वलद हराम के तो जनाब हबीब ने इसके रहवार पर वार किया। इसका रहवार जमीन पर गिरा, ये रहवार समय जमीन पर गिरा और गिरने के बाद ये खेलों की जानिब जाके छुपा। जैसे ही ये मंजर हुआ तो जनाब हबीब ने कहा आका इजाजत दिए कि अब आपकी नुसरत को मैं जाऊं। इमाम ने इजाजत दी, हबीब आए। आने के बाद कयामत की जंग करी। लेकिन तारीख बताती है कबीला बनी तमीम का एक मलून वो आगे बढ़ा जिसका नाम मकातिब में लिखा है कि बदरील इब्ने शरीर था। ये मलून आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद इसने हबीब के सर पर एक तलवार मारी। जैसे ही तलवार मारी इसी कबीले का एक मलून और आगे बढ़ा, उसने भाला को संभाला और संभालने के बाद हबीब की पसलियों पर वार किया। जैसे हबीब की पसलियों पर भाला लगना था कि हबीब घोड़े की ज़ीन पर
तरफ भगाए और जमीन पर तशरीफ लाए। हबीब कहते हैं कि मैं चाह रहा था कि जल्दी से उठूं, लेकिन मैं उठने नहीं पाया था। इतने में एक वलद हराम यही हसीन इब्न नुमैर आगे बढ़ा। इसने बढ़ने के बाद दोबारा हमारे सर पर ज़र्ब लगाई। जैसे ही ज़र्ब का लगना था, हबीब ने कहा, ऐ मेरे दोस्त, मेरा सलाम कबूल करो। इमाम ने जैसे ही सदा सुनी, फौरन घोड़े की लगाम को संभालते हुए हबीब के पास आए। आने के बाद कहा, मेरे भाई क्या हाल है? कहा, आका अब इजाजत दिए तो रूह को परवास करूं। इमाम ने कहा, बिस्मिल्लाह, इजाजत है, रूह को परवास करो। तारीख बताती है रूह परवास हुई। रूह का परवास होना था कि इमाम हबीब के लाशे को खेमे में लेकर आए। मैं कहूंगा, हबीब खुशानसीब, अरे कम से कम तुमने पुकारा और हुसैन आ गया। लेकिन हुसैन पे एक वक्त वो आएगा कि जब कोई ऐसा ना होगा कि हुसैन के लाशे को खेमे में लेकर आए। अरे एक मां बयान कर रही होगी, अरे शिम्र क्या कर रहा है, मैंने इसे चक्कियां पीस पीस के पाला है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुल यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा मरहूम मुशीर आलम साहब के लिए इरशाद फरमा दें। मातम हुसैन।